Hello students, today I am going to complete our remaining chapter, A Truly Beautiful Mind. In our previous lecture, we came to know about this biographical account of Nobel laureate and scientific genius Albert Einstein. And I told you yesterday about the title existence in this chapter. This title is given for the beautiful mind of Albert Einstein, and because he always worked for the human beings, he always worked to spread democracy and peace in the world, and he was a great scientist. He gave many theories to us. He told us about the space, time, and energy. He totally changed our views, our point of views, our concepts about these scientific fields. So I'm going to recall the story. So this story is a biographical account of Nobel laureate and scientific genius Albert Einstein. A quite modest life brings quite in modest life brings more joy than a pursuit of success bound with constant unrest. The note, which was written while the physicist was on a lecture tour in Tokyo. As it जैसे मैंने अभी आपको बताया है, a quiet and modest life brings more joy than a pursuit of success bound with constant unrest. एक बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन, एक बहुत ही विनम्रतापूर्ण जीवन जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आता है, बजाय किसके कि हमें जो है सक्सेस मिली हुई हो, हम पूरी तरह से सक्सेसफुल हों, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली अनरेस्ट हो, हम अनईजी रहते हों. सो ऐसी सक्सेस से जो है एक ऐसी लाइफ जिसमें बहुत ज़्यादा शांति हो, जिसमें बहुत ज़्यादा हम सेल्फ सेटिस्फाइड हों, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है. और ये नोट जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कब लिखा था? जब वो टोक्यो टूर पर गए हुए थे. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the Germany city of Ulm. His mother thought he was a freak, but his head seemed unusually large. And he didn't speak until the age of 2.5. And when he finally started speaking, he uttered everything twice. So he was very strange in his childhood. He loved mechanical toys and preferred being by himself. The headmaster at a school Einstein studied in told his father that no matter what career Einstein would choose, he would never be successful. यहाँ पर जो है उनके हेडमास्टर ने उनके फादर को क्या बोला था कि कोई भी करियर जो है ये चूज़ करे, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट जो है अपनी करियर के लिए चूज करे, लेकिन ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. He played the violin and later became a gifted amateur violinist. He went to high school in Munich and left the school at the age of 15 because of his stifled feelings. His parents had moved to Milan and left him in Munich with relatives. He got to continue his education in a city much more liberal than Munich. He was interested in physics and highly gifted in mathematics. So he studied at a university at Zurich, and his personal life and works, yesterday I told you about that, and from the next page we are going to start about his personal life and his works, whatever he did done throughout his life. Albert fell in love with Mileva Maric, whom he thought was a clever creature, and at the age of 21, now I'm going to start from here, our chapter from word to word thoroughly. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और वो अभी अनएम्प्लॉयड थे. उन्होंने कोई जॉब नहीं स्टार्ट की थी
और उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम किया। ही गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और फिर उन्होंने जो है प्राइवेट लेसन्स देना शुरू किया बच्चों को, और क्लासेस देते थे बच्चों को, और एट लास्ट अल्टीमेटली उनको एक जॉब मिलता है 1902 में बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में जो है एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट उनको सेलेक्ट किया जाता है। पेटेंट ऑफिस क्या है, जहाँ पर जो है कोई भी एक डॉक्यूमेंट है जो किसी भी व्यक्ति को जो वहाँ पर काम करता है उसको राइट देता है कि वो इन्वेंशंस कर सकता है, किसी भी इन्वेंशन को जो है वो अंजाम दे सकता है। कोई भी अपना काम जिसमें जो है वो कुछ चेंजेस लाना चाहता हो, कुछ थ्योरीज जो है दुनिया के सामने लाना चाहता हो, उनको कर सकता है। वाइल ही वो सपोज्ड, लेकिन वो वहाँ पर एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर थे। लोग ये क्या सोचते थे उनके बारे में, ही वो सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन। जब लोग सोचते थे कि वो लोग दूसरे लोगों की इन्वेंशंस पर नज़र रखते हैं, उनको असेस करते हैं, आकलन करते हैं उनका। Einstein was actually developing his own ideas in secret, but Albert Einstein was actually developing his own ideas secretly. वो जो है बिना किसी को बताए अपने खुद के आइडियाज़ वहाँ पर डेवलप करने में लगे हुए थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. और ये भी माना जाता है कि एक बार उन्होंने जो है मजाक में अपना जो ड्रॉर था जहाँ पर उनकी सिटिंग होती थी, जहाँ पर जो है उनका कैबिन था, और उस ड्रॉर में वो जो है फिजिक्स से रिलेटेड हर चीज़ रखते थे, चाहे वो अपनी इन्वेंशन से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो है चीज़ जिसकी उन्हें ज़रूरत थी वो उनके ड्रॉर में होती थी। तो वो एक बार हंस करके अपने ड्रॉर को क्या नाम देते हैं, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, कि जो है थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक पूरा संगठन, एक पूरा संस्थान, एक पूरा ऑफिस जो है मेरे इस ड्रॉर में है। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. और 1905 में एक बहुत ही फेमस पेपर उन्होंने पब्लिश किया था। उन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी पब्लिश की थी अबाउट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन विच ही टोल्ड दैट डिस्टेंस एंड टाइम आर नॉट इक्वल, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the time if they come together again after a journey. One of them has been moving very fast relative to the other. Now he gives an example by two clocks. दो घड़ों से घड़े जो हैं उनमें एक जैसा अगर हम एक्यूरेट टाइम एक बार में डाल देते हैं, और एक लंबी जर्नी के बाद जब हम उन दोनों घड़ों को साथ में ला करके रखते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों घड़े जिनमें हमने सेम टाइम डाला था उनमें जो है अभी टाइम में डिफरेंस मिलेगा। एक घड़ा जो है दूसरे घड़े की बजाय अभी टाइम में उससे कुछ ज़्यादा आगे मिलेगा। सो यही चीज़ जो है क्या शो करती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि कभी भी जो है टाइम और डिस्टेंस जो है सेम नहीं हो सकते हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। टाइम जो है अपनी गति से चलता है और डिस्टेंस वो अपना अलग रहता है। सो फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी से जो है वर्ल्ड का एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी फार्मूला जो है इससे डेवलप हुआ था, जो किसके बीच था, मास और एनर्जी, E=mc²। In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass and C for speed of the light in a vacuum। और यहाँ पर जो है E किसके लिए, एनर्जी के लिए, M मास और C जो है लाइट के लिए, स्पीड के लिए को सिंबलाइज करता है। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes। जब आप किसी अच्छी सी लड़की के साथ बैठते हैं, ये एक एग्जाम्पल दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको साबित करने के लिए अपनी इस थ्योरी को, कि जब आप किसी एक अच्छी सी लड़की के साथ बैठते हैं तो आपको जो है 2 hours भी 2 minutes के जैसे लगते हैं। आप उससे जो है थकते नहीं हैं, आप उसके साथ बैठे रहना चाहते हैं। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours।
लेकिन अगर आपको किसी हॉट स्टोव पर या किसी गर्म चीज़ के पास जो है 2 मिनट के लिए भी बिठा दिया जाए तो आपको जो है वो कैसा लगेगा, 2 आवर्स के जैसा लगेगा। दैट्स द रिलेटिविटी, इसी को क्या कहेंगे, रिलेटिविटी कहेंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन। And this idea of relativity came in his mind when he was visiting in a bus and where he was sitting and he thought about the time and distance there. तभी उनके दिमाग में जो है एक आइडिया आता है टाइम और डिस्टेंस के बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, और वहीं से जो है उन्होंने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हाइल आइंस्टीन वाज solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टीन जो है फिजिक्स की बहुत डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को, समस्याओं को, कठिनाइयों को सॉर्ट आउट कर रहे थे एक के बाद एक, उस टाइम में जो है उनकी निजी ज़िंदगी, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो गिरना शुरू हो जाती, ख़त्म होना शुरू हो जाती। अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू fall. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. एल्बर्ट जो है क्या चाहते थे कि अपनी इन स्टडीज़ को फिनिश करते ही जो है मिलेवा मैरिक से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन की माँ जो थी वो इस शादी के खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him because Mileva Maric was 3 years older than Albert Einstein, and Albert Einstein's mother thought that she is not fit for his son. She was also bothered by Mileva's intelligence, and his mother was also worried about Mileva's intelligence. वो जो है बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि मिलेवा भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लाइक एल्बर्ट आइंस्टीन। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो भी तुम्हारी तरह एक किताब है। एंड हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और जब उसकी माँ ने जो है इसकी खिलाफत की तो उसने जो है शादी ना करने का मन बना लिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन आफ्टर ऑल जो है उनकी शादी हो ही जाती है 1903 में जनवरी में, एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हो जाते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ साल के बाद इनका जो शादी थी वो बहुत ही ज़्यादा, शादी वाला संबंध कमज़ोर हो जाता है। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और मिलेवा उस टाइम तक क्या हो गई थी, उसने जो अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थे उसके, वो भी कुछ जो है अचीव करना चाहती थी अपनी लाइफ में अपने बलबूते पर, वो जो है उसका ख़त्म हो गया था शादी के बाद। और वो एक अनहैप्पी हाउस वाइफ थी, ना तो वो अपनी जो है एक वाइफ के तौर पर अपने ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर पा रही थी, और ना ही वो जो है अपने एम्बिशंस को पूरा कर पा रही थी। इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी इस लाइफ से। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और इसी वजह से जो उनमें लगातार लड़ाई होती रहती थी, और द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। इसी वजह से जो है उन्होंने 1919 में डाइवोर्स लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल जो है आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame, और जो आइंस्टाइन का जो पर्सनल चैप्टर था उसके साथ साथ जो है उसका संसार में, जब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, वो चैप्टर जो है उनकी ज़िंदगी का स्टार्ट हो जाता है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने जो है रिलेटिविटी की थ्योरी दी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और इसी वजह से जो है एक नई डेफिनेशन मिली ग्रेविटी को, उसके बारे में जो है एक नई पहचान लोगों को मिली। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और एक सूर्य ग्रहण जो कि 1919 में हुआ था उसने साबित कर दिया कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की गणनाएं हैं, थ्योरीज हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। और आइंस्टाइन ने क्या किया, उन्होंने करेक्टली कैलकुलेट कर लिया एडवांस में ही
कि जो ये फिक्स्ड स्टार्स हैं, कुछ सितारे हैं, कुछ तारे हैं, उनसे जो है कितनी ज़्यादा लाइट जो है रिलीज़ होगी, कितनी ज़्यादा लाइट जो है उनसे आएगी, किस एक्सटेंट तक जो है लाइट बाहर आएगी। एंड जो सन का ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे जो है निकल करके कितनी दूरी तक जो है उनकी लाइट आ सकती है। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर्स ने जो है उनकी इन अचीवमेंट्स को जो है क्या बताया, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। एक यहाँ पर क्या बताया गया था, मैं दोबारा से बताना चाह रही हूँ। Einstein had correctly calculated in advance in the extent to which the light from fixed stars would be deflected, कि वो बताना चाह रहे थे कि कुछ फिक्स्ड स्टार्स हैं, उनकी लाइट जो है वो किस डायरेक्शन में जो है जा कर के चेंज हो जाएगी, जब वो किसी चीज़ को हिट करेगी तो वो किस डायरेक्शन में जो है मूवमेंट करेगी। और इसी वजह से जो है जब उन्होंने ये पहले ही एडवांस में बता दिया था कि सन के जो ग्रेविटेशनल फील्ड से लाइट जो तारों पर गिरती है, और वो लाइट जो है जब किसी चीज़ से टकराएगी तो वो किस साइड में वो मूव करेगी, और ये बात जो है उसकी सत्य साबित होती है। और इसी वजह से जो है उनको क्या बोला जाता है कि उन्होंने जो अचीवमेंट्स जो थ्योरीज दी हैं वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, और इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है फिजिक्स में 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और इसी वजह से जो है उनको बहुत सारा सम्मान मिला। हर देश से जो है उनको इन्विटेशंस आने लगे अपने देश में बुलाने के लिए, और हर जगह जो है प्रेस ने उनको बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा की, उनको प्रेज़ किया। तो इस टाइम में जो है जब उनकी पर्सनल लाइफ बिखरी हुई थी, उनको जो है बहुत ज़्यादा फेमस वो हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब नाजिज़ पावर में आए थे जर्मनी में 1933 में, उस टाइम पे जो है आइंस्टीन ने वहाँ से जो है कहाँ इमिग्रेट कर दिया था, यूनाइटेड स्टेट्स में आकर के उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और जब उसके 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी होती है, जो एटम बम्स हैं उनके डेवलपमेंट की जो है तैयारी होती है, तो अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे वो जो है सारे बड़े अपसेट हो जाते हैं। दे वर वेरी अपसेट बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू दैट नाजीज विल डेवलप एटम बॉम्ब्स by using this nuclear fission, theory of nuclear fission. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, और कुछ तो साइंटिस्ट जो है वहाँ से जो है दूसरे देशों में उन्होंने एमिग्रेट हो गए थे, वो चले गए थे, क्योंकि उनको पता था कि जो है नाजीज़ क्या करेंगे। हिटलर नाजी पार्टी का नेता था और वो एक डिक्टेटर था, वो तानाशाह था, तो वो जो है अपनी मर्ज़ी से काम करवाता था, और इसी वजह से जो है बहुत सारे व्यक्ति जो है, बहुत सारे साइंटिस्ट जर्मनी से बाहर निकल गए थे, जैसे आइंस्टाइन भी जो यूएस में आ गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड यूज़ एन एटमिक बॉम्ब, और अब उनको जो है एक डर था कि नाजीज जो है अब बॉम्ब बनाएंगे और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned। अब उनके एक कलीग ने उनसे आग्रह किया कि आप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखो, और उन्होंने जो है 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा भी, और वो एक वार्निंग लेटर था, और उसमें उन्होंने क्या लिखा, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पॉट might very well destroy the whole port together with the some of the surrounding territory। और उनको बताना चाहते थे कि अगर इस तरह का बॉम्ब बना लिया गया और उसको जो है
डाल दिया गया, एक्सप्लोड कर दिया गया किसी भी जगह पर, किसी पोर्ट पर, तो वो उस पोर्ट को तो लेकर के ख़त्म करेगा ही करेगा, साथ में जो उसके आसपास के टेरिटरीज़ हैं, जो राज्य हैं, उनको भी ख़त्म कर देगा। हिज वर्ड्स दे डिड नॉट फेल टू हैव एन इफ़ेक्ट, और उसके शब्दों का जो है कोई फेल नहीं हुए, क्योंकि उनका इफ़ेक्ट ज़रूर हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिकन्स ने भी जो है सीक्रेटली अपने बॉम्ब डेवलप कर लिए, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और उनको जो है जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल दिया 1945 में, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन जो है बहुत ज़्यादा अंदर तक सन्न हो गए थे, एकदम से जो है हिल गए थे जब उन्होंने देखा कि किस एक्सटेंट तक डिस्ट्रक्शन हुआ है, विनाश हुआ है। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, अब उन्होंने जो है एक लेटर लिखा, पब्लिक मिसिव लिखा, एक लेटर जो स्पेशली लॉन्ग एंड वेरी ऑफिशियल लेटर, और वो यूनाइटेड नेशंस को लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसमें उन्होंने प्रपोजल दिया कि अब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए, ताकि कोई भी कंट्री जो है इस तरह से अपनी मनमानी ना कर सके, अपनी मर्जी से जो है किसी भी देश पर आक्रमण, अटैक ना कर सके, स्पेशली एटमिक अटैक ना कर सके। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन जो है इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसे रूजवेल्ट को लिखे हुए लेटर का इफेक्ट पड़ा था। लेकिन अगले डिकेड का मीनिंग क्या होता है, अगले 10 साल, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने जो है अपने आप को किस काम में लगा दिया, एजिटेटिंग करने लगे वो, उन्होंने लोगों के सामने प्रदर्शन करना शुरू किया कि जो ये आर्म्स बिल्डअप है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इन चीज़ों को कि आर्म्स बिल्डअप जो है ये ख़त्म होना चाहिए, इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए हथियार बनाने पर। और अपनी पॉपुलैरिटी को एज ए साइंटिस्ट उन्होंने जो है किस में लगा दिया, कैंपेनिंग करने में लगा दिया फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब आइंस्टीन जो है 1955 में अपनी 76 ईयर्स की एज में गुजर जाते हैं, ही वो सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, उनको एक विजनरी के तौर पर भी जो है का दर्जा दिया जाता है, जो दूर की पहले ही देख सकता है, दूर तक का जो है अंदाज़ा लगा सकता है, एक दूरदर्शी के तौर पर उन्हें माना गया, और एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर जो है उन्हें जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है पीस और डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाया, अपनी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करके उन्होंने हर जगह पर पीस और डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया, और एक साइंटिफिक जीनियस तो वो हमेशा से थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। So in today's lecture we came to know about his works and his private life, how it got faltered because Mileva Marik got married with him in 1903 and they had 2 sons after that, and but their private life was not good, their married life was not good, because Mileva Marik was not happy with with her present life. She didn't achieve anything in his life, she was very ambitious, and she was not a good housewife also, so they got divorced in 1919, and in the same year he got married with his cousin Elsa, and after that he gained a lot of popularity throughout the world by his theories, his theory of relativity and his theory of an eclipse of the sun in 1919 proved that it was accurate. He had correctly calculated the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field, and in advance his work was considered a scientific revolution.
later life and his in his some quotes. So in this chapter, in this lecture, we came to know about his personal life and his works, what he achieved in his life, what he gave to us throughout his life. Thank you.